اس سے جو ہے وہ تقریباً جو ہے کسی حد تک وہ پوری ہو گئی ہے، اور اس دفعہ بھی ہم ایک بہترین بجٹ کے لیے ایک تیاری ہماری تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ ہماری کنسلٹیشن مختلف اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہو گئی ہے، اور ہماری حکومت نے جو 2-3 بجٹ دیے ہیں، تاریخ میں یہ پریسیڈنٹ نہیں تھا، لیکن ہم نے ایک کنسلٹیشن کے تحت کہ بجٹ پہلے بھی دیا اور اب بھی جو ہے ہم بجٹ دے رہے ہیں، ایک پراپر کنسلٹیشن ہم نے لوگوں کے ساتھ کی ہے، جس میں ہم اپنی یونیورسٹیز میں گئے ہیں، براہ راست لوگوں سے ملے ہیں، تاکہ جو پبلک کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے۔ اور اس دفعہ انشاءاللہ جب بجٹ آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان سیکٹر کو جو ہے ہم نے زیادہ فوکس کیا ہے جو پہلے ڈپرائیو تھے، اور ہماری سوسائٹی کے ایسے افراد اور ایسا سیکشن جن پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو جو ہے بھرپور طریقے سے اس دفعہ بجٹ میں توجہ دے رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے بھی اچھا خاصا جو ہے بجٹ رکھ رہے ہیں۔ تو 18 تاریخ کو ہمارا صوبائی گورنمنٹ کا بجٹ اسمبلی میں ٹیبل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جو 3 سال تیسرا جو بجٹ ہمارا آ رہا ہے وہ باقی بجٹوں کی طرح امپرووڈ ایک بجٹ آپ دیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو آگاہ کروں۔ اگر کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہے تو بتائیں۔ دیکھیں، ہم بلوچستان بینک بنانے جا رہے ہیں، اس کی جو ہے فیزیبلٹی کے لیے ہم نے ٹینڈر دیا ہے، اور ہمیں ایف بی آر نے کہا ہے کہ وہ فری آف کاسٹ ہماری مدد کرے گا، اور اس دفعہ ہم بلوچستان بینک کے لیے بھی اچھا خاصا الوکیشن رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ بینک لانچ ہو جائے گا تو لوگوں کو صوبے میں انویسٹمنٹ کے مواقع جو ہیں ملیں گے، اور اس کے علاوہ امپلائمنٹس بھی جنریٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی صوبے کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے ریکارڈنگ اتھارٹی اور باقی جو کچھ کرتے رہے ہیں ان پہ میں افسوس کروں گا اور کمنٹس میں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالی جو غلطیاں ماضی میں جو ہے ہوتی رہی ہیں وہ ہم نے کافی حد تک جو ہے ان کو درست کر لیا ہے، اور ہم پالیسی ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 102 کے قریب ہم نے رجسٹریشن کی ہیں، 57 ہم نے بل اسمبلی سے جو ہیں پاس کرائے ہیں، کوئی 57 کے قریب اب کیبنٹ نے اپروو کیے ہیں اور وہاں پہ صوبے اسمبلی میں پاس ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ ایک خود اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم سسٹم میں ایک ریفارم لانا چاہ رہے ہیں، اور ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ہم نے بہت سی جو ہیں پالیسیز دی ہیں، جس میں لینڈ لیز پالیسی ہے، ہماری مائنز اینڈ منرل پالیسی ہے 2020، اور اس کے علاوہ ہمارا بلوچستان فوڈ اتھارٹی کا قیام ہوا ہے، یونیورسٹی ماڈل ایکٹ بننے جا رہا ہے، بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا ایکٹ جو ہے وہ امینڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسے اقدامات ہیں کہ جس کے دوررس نتائج جو ہیں اس صوبے پہ اور صوبے کے عوام پہ پڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کر کے رہیں گے۔ بجٹ کی بہتری کا آپ نے ذکر کیا، تو عوام کے لیے کیا خوشخبری ہے، اور خاص کر سرکاری ملازمین کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ سرکاری ملازمین نے ایک پریس کانفرنس کو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بجٹ کے دن پورے اسمبلی کا گھیراؤ کر لیں گے۔ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کیوں گھیراؤ کریں گے، لیکن ہم نے ان کے لیے جو ہے ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ ہم نے مان لی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں اب دیکھو میرے بھائی، 18 تاریخ سے پہلے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ 18 تاریخ کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں ہمارے جتنے بھی تنخواہ دار ملازمین ہیں ان کے لیے ہم نے اچھا خاصا جو ہے ایک انکریمنٹ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، جو نیا ڈویژن بنا ہے اور ایک نیا ڈسٹرکٹ، وہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ بنے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ چونکہ بلوچستان کا رقبہ بہت بڑا ہے،
तो एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए एक नया डिवीज़न और एक नया डिस्ट्रिक्ट बना। इसमें कोई इतना जो है इसका बड़ा कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है और वो मैनेजेबल है। सर आपने अभी इसमें अपने जो फिगर्स बताए हैं उसमें आपने कहा कि बिला तफरीक जो आपका बजट था 2020-21 का उसमें तमाम हल्कों को देखा गया, लेकिन अपोजिशन का एहतजाज और उनकी जानिब से मामला जो है वो आपकी बात की नफी करता है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, मैं वज़ीर ख़जाना, मैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करूँगा। अपोजिशन का हल्का खारान है। जो मैंने सैप सिस्टम फाइनेंस से वो जो मैंने फिगर्स निकाले हैं, 97 करोड़ खारान को गए हैं। खुशदार को कोई 2 अरब से ऊपर फंड्स गए हैं, कोई 1.5 अरब के करीब पशीन को गए हैं। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है अपोजिशन के हैं। देखिए, वो उनकी अपनी सियासत है, उनकी अपने मामलात हैं। अब वो कहते हैं कि जी हमें बराह रास्त फंड्स दें। हमने कई दफ़ा उनको वाज़ेह किया है कि हुकूमत बलूचिस्तान स्कीमात मंजूर करती है लोगों के ज़रूरत को देखते हुए, जहाँ पे पानी की ज़रूरत हो, जहाँ पे स्कूल की ज़रूरत हो, जहाँ पे अस्पताल की ज़रूरत हो। और उन्होंने एक अजीब सी टर्मिनोलॉजी क्वाइन की है कि जी अनइलेक्टेबल्स को जो है आप लोग फंड्स दे रहे हैं। बेसिकली अब मैंने कई दफ़ा असेंबली में उनको रिफ्यूट किया है कि भाई ज़रूरत को देखते हुए फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट जारी करती है, स्कीमात अप्रूव करती है, वो किसी के का फंड नहीं होता। और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वाज़ेह कि ना MPA ना MNA ना ही किसी मखसूस आदमी का कोई जो है मखसूस फ़ंड होता है। फ़ंड जो हैं वो हुकूमत बलूचिस्तान के हैं और वो ज़रूरतों के मुताबिक खर्च होते हैं और उसी तरह कर रहे हैं। जी, वो 18 के बाद 18 को बताऊंगा आपको। सर एक अप्रॉक्सीमेटली बता दें कि विजन क्या होगा, खसारा एक्सपेक्टेड क्या है और तरजीहात आपकी उसमें क्या है, एक आइडिया। देखें, तरजीहात हमारी हेल्थ है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन निज़ाम को बेहतर करना है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स जो डोरमेंट थे उनको बेहतर करना है, हमारे वो सेगमेंट, हमारे माशरे के वो लोग जो हमेशा से नज़रअंदाज रहे हैं उन पे तवज्जो देना है। और वो इंशाल्लाह बजट में होगा। मैं उसका ना आपको फ़िलहाल उसका हजम भी बता सकता हूँ, ना कोई और आपको इसके बारे में कोई इत्तला दे सकता हूँ। जब बनी आप लोगों की हुकूमत तो सबसे पहला मुद्दा ये था कि सूबे की रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा। उस हवाले से खास तौर पे जो आपका पटवारी कल्चर है, आज भी रेवेन्यू के तहसील दफातर में बैंक के जरिए नहीं, चालान के जरिए नहीं, बराह रास्त पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इस निज़ाम को कब तब्दील करेंगे, रेवेन्यू को किस तरह? मैं इसके थोड़ी जवाब देता हूँ। पिछले फाइनेंस बिल में हमने कोई 12 लेजिस्लेशंस किए थे और इस दफ़ा भी हम करने जा रहे हैं। और हमारा जो लेजिस्लेशन करने का मकसद ये है कि हम अपने टैक्स टारगेट को बढ़ा दें। और हमने जितने भी हमारे रेवेन्यू जनरेटर महकमे हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, माइंस एंड मिनरल्स है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, हमने अमेंडमेंट भी लॉज में कर रहे हैं, उनको इम्प्रूव भी कर रहे हैं और हम उनको जो है उनका भी सिस्टम बेहतर कर रहे हैं कि जी आप अपना टारगेट बेहतर करें। बाकी जवाब सलीम साहब खुद देंगे। मैं थोड़ा सा इस पे बता दूं कि जिस तरह ज़हूर साहब ने तो बता दिया तफसीलन, इसको जिस तरह आपने तहसील की बात की, तो हमारी कोशिश है तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट जो है हम डिजिटलाइजेशन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। तकरीबन 90% उस पर काम हो चुका है। एक जाफराबाद है आपका, और कोयटा है, पशीन है और ग्वादर है। और तहसील को भी हम इंशाल्लाह ताला जो भी इस मामलात होंगे वो डायरेक्ट जो लोग हैं वो अपने जो बजाय के किसी पटवारी के ज़रिए जमा कराएं वो डायरेक्ट कराएंगे। वो जल्द इंशाल्लाह ताला ये हम गो थ्रू कर लेंगे कुछ ही अरसे के अंदर, विद इन मंथ 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ताला। उससे इंशाल्लाह ताला रेवेन्यू जनरेशन में काफ़ी बेहतरी आएगी जब आप डायरेक्ट पैसे जमा कराएंगे डिजिटलाइजेशन सिस्टम के तहत। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी हमने काफ़ी तवज्जो दी है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम हमारा था, वो कामयाब हो गया है और लोगों को जो है एक फेयर
निज़ाम से जो है वो किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तालाबों और नालियों का, वो भी सक्सेसफुल जा रहा है। इसके अलावा जो है हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें बुलडोज़र आवाज़ और बाकी हैं। तो इस पे हमने बाकी हुकूमतों की नस्बत ज़्यादा तवज्जो दी है, और इस दफ़ा भी हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टरों में है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। सर, ये सप्लीमेंट्री बजट का जो आपने कहा, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। ट्रूली मेरे ख्याल में ये जो पॉइंट है, ये जो कंपेयर करना माजी के साथ और मतलब वोट करना कि अपोजिशन क्या कहती है, वो ठीक है, दे आर वेरी गुड थिंग्स, दे आर गुड इंडिकेटर्स। लेकिन मैं ज़्यादा सर इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ कि आपका बजट मैनेजमेंट, आप कह रहे हैं कि बजट मैनेजमेंट, दिस इज बेसिकली बजट मैनेजमेंट, कि बहुत अच्छा हो गया, और ये हमारे सूबे के लिए मतलब बहुत खुशी की बात है। मैं बड़ा क्यूरियस हो गया सुन के कि क्या ये बजट मैनेजमेंट क्या एटीट्यूड्स की वजह से, वो क्या फैक्टर्स थे जो आप समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी लर्निंग का बहुत अच्छा मौका है, कि आप समझते हैं क्या फैक्टर्स थे वो जिसकी वजह से ये, क्या ये एटीट्यूड की वजह से बजट मैनेजमेंट सही हुआ, कि मतलब सप्लीमेंट्री बजट अगर इतना कट हुआ है, दिस इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। तो आप इसमें क्या चंद फैक्टर्स बयान करेंगे कि जिसकी वजह से बजट मैनेजमेंट आप लोगों ने मीन्स जितना आपने टारगेट था वो अचीव करके, और किस चीज़ से ये मतलब सही? देखें, 3-4 चीज़ें हमने की हैं। पहला काम हमने ये किया है कि हमने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट मंजूर की है, जिसके तहत वो स्कीम आने वाले वक्तों में या इस दफ़ा जो बजट बनने जा रही है वो पीएसडीपी का हिस्सा नहीं बन सकेगा जब पहले से अप्रूव ना हो, जब उसकी फिजिबिलिटी मंजूर ना हो। इसके अलावा पीएसडीपी को हम ऑटोमेशन की तरफ ले जा रहे हैं, कि पहले ये था कि दकियानुसी सिस्टम चल रहा था कि एक स्कीम अगर पीएनडी ने जो है वो प्रोविंशियल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी ने उसको अप्रूव कर ली, फिर वो उसकी समरी जो है वो एक तो पीएनडी के अंदर पे घूमती थी, फिर इसके बाद फाइनेंस में जो है वो उसकी समरी जो है वो वहाँ पे मुख्तलिफ टेबल्स पे जो है वो घूमती थी, फिर एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट में। तो इस तरह कोई 2 से 3 महीने जो है वो फंड्स को डीडीओ के पास जाने में लगते थे। जब ये पीएसडीपी ऑटोमेशन हो गया है तो जिस दिन उसकी अप्रूवल होगी विद इन डेज वो जो है उसकी डीडीओ तक चला जाएगा। इससे ये होगा कि जी हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा जो है ये जो हमने जो फिस्कल मैनेजमेंट जो किया है उसमें हमने चीज़ें इंश्योर की हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया है। आपने नहीं सुना होगा कि 3 साल में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फिर रहा होगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिलीज़ के लिए फिर रहा होगा। एक सिस्टम हमने मुतारिफ़ कराया है। फिर हमने ये किया है कि हमने प्रॉपर प्लानिंग की है कि जी हमें पूरे सालों के बजट एस्टिमेट्स पे होता है कि हमने फ़लाने सेक्टर में इतने फ़ंड्स खर्च करने हैं, फ़र्ज़ माल हेल्थ में हमारे इतने फ़ंड्स होंगे खर्च होंगे, एजुकेशन में इतने होंगे, कम्युनिकेशन सेक्टर में इतने होंगे, बाकी जो हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इतना है। तो इस पे हमने एक प्लानिंग के साथ जो अपने बजट बुक में रिफ्लेक्ट किया है, तो उसी की कोशिश की कि उसी के मुताबिक चलें, जिसकी वजह से हमें तारीख का जो है सबसे कम तरीन सप्लीमेंट्री बजट दे रहे हैं। और ये 3-4 चीज़ें जो हमने कर ली हैं। सेनेटर और जो वज़ीर आला के मतलब जो अरकान हैं जिनमें असिस्टेंट अफसर उनके लिए भी सुना बजट में आपने फंड रखे हैं? किसी के लिए फ़ंड नहीं है, फ़ंड बलूचिस्तान के अवाम के लिए हैं। जो प्रोजेक्ट या जो स्कीम जहाँ पे ज़रूरत की बुनियाद पे, नीड बेस की बुनियाद पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान समझती है वो दे रही है। किसी सेनेटर को या किसी जो है स्पेशल असिस्टेंट को उनके लिए कोई फ़ंड नहीं है। मैं इस पर थोड़ा सा बात करूँ। मैं इस पर थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा। देखिए, ओवरऑल आप डेवलपमेंट को देख लें बलूचिस्तान का ना, ये 2-3 साल का उठा कर दें, तारीख़ में कभी भी इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। जिस तरह अभी ज़हूर साहब ने फरमाया, यही आपका सेक्रेटेरिएट इन दिनों में लफ्ज़ कहते हुए मुनासिब नहीं है, लेकिन पीएनडी में एक मंडी लगती थी, आप लोगों के सामने था सब कुछ, ये सारे सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या हालात होते थे, कोई अगर फूड पॉइंट में चाय पीने के लिए जाता था तो कहता था कि चलो यार थोड़ा सा सेक्रेटेरिएट में एक स्कीम डलवा कर फिर चलते हैं। तो
हमारे भाई हैं, सारे सीनियर दोस्त हैं हमारे अपोजिशन वाले। हमने कई दफ़ा उनको कहा कि आप लोग अपने तजावीज़ दें, सीएम सेक्रेटरीट में तजावीज़ दें, पीएनडी में दें, हम लोग भी अपने तजावीज़ देते हैं। आप यकीन करें बहुत सारे हम तजावीज़ देते हैं, यहाँ नहीं आते, पीएनडी नहीं मानती है। पीएनडी वो चीज़ मानती है जो फिजिबल हो। तो हमारे दोस्त हैं, आज भी हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग सारे सीनियर दोस्त हैं। बड़ा ही गैर मुनासिब है जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं। मैंने जाम साहब से गिला किया, मैंने जाम साहब को कहा कि जाम साहब आपने मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे हलके सोबतपुर को कम फ़ंड दिया है, आपने अपोजिशन के हलकों को ज़्यादा फ़ंड दिया है, पशीन में ज़्यादा फ़ंड दिया है, लेकिन ज़्यादा या कम उस इलाकों को दिया गया जहाँ ज़रूरत है आवाम की, आवाम के जो ज़रूरत है उनकी, उसके तहत देखा गया है। जाम साहब ने, पीएनडी ने वो काम किया है जो जिस हलके में, चाहे वो अपोजिशन का हलका हो चाहे वो हुकूमत का हलका हो, मेरे हलके से ज़्यादा अपोजिशन के हलकों में कुछ ज़रूरत थी, ज़्यादा पैसे दिए गए। तो इसमें कोई तफरीक नहीं रखा गया। आज भी आप देखेंगे 18 तारीख को बहुत सारे ऐसे हलके होंगे अपोजिशन को जहां हुकूमत के हलकों से ज़्यादा पैसे मिले जाएंगे। मैं आप लोगों के ज़रिए अपने उन सीनियर दोस्तों को फिर से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों के कोई तजावीज़ हैं तो ज़रूर दें। सर आपने ओवरऑल सिचुएशन में बताया था क्या कोयटा पैकेज एक आया था, अब तक वो हमें कागजों में नजर आता रहा, उसके बाद वो कमिश्नर साहब भी यहाँ से चले गए, उसकी क्या सिचुएशन है? कोयटा शहर का ट्रैफिक मैस आपके सामने है, जो सूरत हाल चल रही है रोड्स की, इसको कब तक डेवलप करेंगे? देखें ये तो एक ह्यूज पैकेज है, इसमें कुछ सड़कों पे तो काम जो है शुरू हो चुका है, जैसे सरियाब में भी हो किसी एक सेक्शन पे हो गया है, कुछ में कंपनसेशन का इशू आ रहा है, लैंड एक्विजिशन का आ रहा है। हुकूमत और जो लोगों की डिमांड है रेट्स के हवाले से वो जो है तय नहीं पाया, वो अदालतों में चला गया है। तो जैसे ही कंपनसेशन का इशू जो है वो क्लियर हो जाएगा, उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।